सृष्टि रची, पंछी गाते हैं गीत, स्मरण कर तेरा। पंछी गाते हैं गीत, स्मरण कर तेरा। चहकने उन्हें एक उपवन मिला, तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे है जीवन मिला। तेरे गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। आज की यह मिसा बलिदान निम्नलिखित सभी मतलबों की धन्यवाद की मिसा सैमसन के जन्म दिवस पर जूली सिरिल की ओर से Thanksgiving offered by Daisy William, Thanksgiving offered by Pooja Simon William, Thanksgiving offered by Vijaya Thorat, Thanksgiving on the birthday of Joseph offered by Thanksgiving on birthday of Simon George offered by Angelina Manker, soul of Robin Charlie offered by Celine Martin, offered by Jocelyn Rosario, soul of Robert Nicholas offered by Jocelyn Rosario, for special intention offered by Jocelyn Rosario, soul of Anil Taide offered by Ronald Michael and family, Thanksgiving offered by Maurice Francis and family, Monica Taide की आत्मा शांति के लिए offered by Ronald Michael and family, Thanksgiving offered by Pinky Vasu, Thanksgiving in honor of Sacred Heart offered by Moti Mary Moses, Thanksgiving in honor of Sacred Heart offered by Sanjeev Wankade, soul of Praful Yekka offered by Margaret Yekka, Thanksgiving offered by Vishal Kulmethi, Thanksgiving offered by Leena Leo Prakash Raphael, Thanksgiving Mass offered by Philip Jaiswal, Thanksgiving offered by Sebastian Moses, Thanksgiving in honor of Our Lady of Elangani offered by Jaitun Sebastian, for the good health offered by Jairus Sebastian, soul of all departed souls offered by Jaitun Sebastian, soul of Louis Clark offered by Sarika Clark and family, Thanksgiving in honor of St. Anthony offered by Francis de Costa, soul of George Dandasena offered by Francis Dandasena, soul of Josephine Mint offered by Rajesh Kumar and Mint, soul of Rufina Kujur offered by Rajesh Kumar and Mint, soul of Joachim Bara offered by Rajesh Kumar Mint, Thanksgiving offered by Julius Joseph, Thanksgiving offered by Raymond Daniel and family, all departed souls offered by Raymond Daniel and family, soul of Leo Solomon offered by Rita Solomon, Thanksgiving offered by Sylvester Solomon, for all the departed souls offered by Anil Francis, Thanksgiving Mass on 25th wedding anniversary offered by Cyril, John and Mary, Thanksgiving offered by Diana, Anthony and Devi, for special intention offered by Maria Santiago, Thanksgiving Mass offered by Maria Santiago, soul of departed souls in purgatory offered by Monica Gupta, Thanksgiving offered by Prem Kamble, Thanksgiving offered by Robin Joseph, for special intention offered by Rohit Kotare, Thanksgiving in honor of Sacred Heart of Jesus offered by Robin Kotare, Thanksgiving in honor of St. Anthony offered by Lily Kotare, soul of departed souls of the family offered by Kotare and family. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सब को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आज प्रभु का दिन है।
हम परिवार के रूप में और व्यक्तिगत अकेले में अपने अपने टीवी के सामने उपस्थित हुए हैं, अपने घरों में हाजिर हुए हैं। ईश्वर ने हम सबों को बुलाया है उनके साथ पवित्र मिस्सा जल चढ़ाते हुए प्रार्थना करने के लिए। आज के वचन हमें बताता है, स्तोत्र ग्रंथ 146 में हम पढ़ते हैं, हालेलुया, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूँगा। जब तक जीवित रहूँगा मैं प्रभु के भजन गाऊँगा। ना तो शासकों का भरोसा करो और ना किसी मनुष्य का जो बचाने में असमर्थ है। वे प्राण निकलते ही मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी दिन उनकी सभी योजनाएं व्यर्थ हो जाती हैं। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने ईश्वर पर भरोसा करता है। जी हाँ प्यारे भाई तथा बहनों, इंसान मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बहुत बार हम अपने जीवन में यह घमंड करते हैं कि मैं उस मंत्री को जानता हूँ, इसको जानता हूँ। मगर वचन कहता है, ना तो शासकों का भरोसा करो ना किसी मनुष्य का, और वही मनुष्य जीतता है जो प्रभु पर भरोसा रखता है। और इसलिए हम वेद के सामने उपस्थित होकर इस पवित्र मिस्सा बलिदान की शुरुआत में आइए हम अपने भरोसा प्रभु पर रखें। कोई मनुष्य हमें बचाने में समर्थ नहीं है, सिर्फ ईश्वर ही हमें बचा सकता है। ईश्वर ही हमारे परिवार को, बच्चों को बचा सकता है। और वही ईश्वर में हम अपना विश्वास हम प्रकट करते हुए इस पवित्र बलिदान में हम योग्य रीति से भाग लेने, अपने पाप स्वीकार करें। उन सभी क्षणों के लिए जब हमने ईश्वर पर भरोसा नहीं रखा है। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर उनको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। महिमा परमेश्वर की हो, महिमा ही महिमा हो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा ही महिमा हो। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो प्रभु की। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो प्रभु की।
स्वामी तू बलशाली, सब मिल गाए महिमा गा। जगत पिता पुत्र तुम्हारे, पवित्रता का दे दो नाम। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, महिमा ही महिमा हो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा ही महिमा हो। इकलौते सुत स्वर्ग से उतरे, कदम रखा तो धन्य हुई। यीशु मेमना दया के साथ विनय हमारी सुन ले प्रभु। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, महिमा ही महिमा हो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा ही महिमा हो। विराजे पुत्र पिता के, शोभित पावन तू प्रियवर। पवित्र आत्मा के संग नभ पर, चार दिशाओं में आठों पहर। आमीन आमीन प्रार्थना करें। ये ईश्वर तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उत्थान किया है। अपने भक्तों के हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने इनके पापों की बेड़ियां तोड़ दी है, अब इनको अनंत सुख प्रदान कर। यही हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी जकरिया का ग्रंथ। प्रभु यह कहता है, हे सिय्योन की पुत्री आनंद मना, हे यरूशलेम की पुत्री जय जयकार कर। देख, तेरा राजा तेरे पास आ रहे हैं। वह न्यायी और विजयी है, वह विनम्र है, वह गधे पर बछड़े पर गदही के बच्चे पर सवार है। वह इफ्राइम से रथ दूर कर देंगे और यरूशलेम से युद्ध के घोड़ों को, योद्धा के धनुष का बहिष्कार कर दिया जाएगा। वह राष्ट्रों के लिए शांति घोषित करेंगे। उसका शासन समुद्र से समुद्र तक और नदी से पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे ईश्वर मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूँगा। अनुवाक्य। हे ईश्वर मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण
करता है, वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य। हे ईश्वर मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहे। वे तेरे राज्य की महिमा गाए और तेरे सामर्थ्य का बखान करे। अनुवाक्य। हे ईश्वर मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। उसके समस्त कार्य उसके प्रेम से पूर्ण है। प्रभु निर्बल को संभालता और झुके हुओं को सीधा करता है। अनुवाक्य। हे ईश्वर मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है, तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचलित है। जिस मनुष्य में मसीहा का आत्मा निवास नहीं करता, वह मसीहा का नहीं। जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया है, वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है, आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करता है। इसलिए भाइयों, शरीर की वासनाओं का हम पर कोई अधिकार नहीं। हम उनके अधीन रहकर जीवन ना बिताए। यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने कहा, हे पिता, ये स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सभी बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, और इसी तरह पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करें। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके साथ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।
क्राइस्ट में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आज प्रभु का सुसमाचार में हम यह वचन सुना है मत्ती 11:25 में। आप मेरे बात बोलिए। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सभी बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। जी हाँ प्यारे भाई तथा बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं मैं तेरी स्तुति करता हूँ। ईश्वर की स्तुति करते हैं प्रभु यीशु। यह कहते हुए स्वर्ग के रहस्यों को ज्ञानियों और समझदारों, जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, जो अपने को दुनिया की दृष्टि में ज्ञानी समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए ईश्वर के राज्य प्रकट नहीं किया गया है, मगर जो नम्र है, जो विनीत है, मेरे बच्चों के लिए यह प्रकट किया करके यीशु पिता ईश्वर की स्तुति करते हैं। यह स्तुति आज के विषय हमारा होगा स्तुति के बारे में। यह स्तुति क्या होती है? स्तुति यही होती है प्यारे भाई तथा बहनों, जब हम दूसरों को प्रशंसा करते हैं, उनके पेट तपाते हैं कहते हुए तुमने बहुत अच्छा किया है। और जब हम क्रिश्चियन की बात आती है, जब हम क्रिश्चियन के बात में यही मतलब निकलता है, जब हम आनंद के साथ ईश्वर के उन सभी महान कार्य जो हमारे जीवन में हुआ है उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं आनंद के साथ। और जब हम इस प्रकार टीवी के सामने बैठकर या गिरजाघर में मिस्सा बलिदान सुनते हैं आनंद के साथ, खुशी के साथ, पिछले हफ्ते से लेकर आज तक ईश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या कार्य किया है, किस प्रकार की कृपाएं हमारे जीवन में बरसाई है, इसी इन सभी वरदानों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। और स्तुति हम क्यों करना चाहिए? स्तुति हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है? बहुत से कारण हैं और विशेष रूप से ये कारण है हम ईश्वर की स्तुति क्यों करना चाहिए। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 43 वचन 21 में ईश्वर कहता है, मेरे बात बोलिए, मैंने यह प्रजा अपने लिए बनाई है, यह मेरा स्तुतिगान करेगी। जी हाँ, यदि हम इस दुनिया में आए हैं हमारे माता पिताओं के द्वारा, यदि हम इस दुनिया में जी रहे हैं, सबसे पहले ईश्वर के दृष्टि में यही मकसद है कि यह प्रजा मैंने इसलिए बनाई है, यह प्रजा को इस दुनिया में इसलिए लाया हूँ। वचन कहता है यह मेरा स्तुतिगान करेगी। हम विश्वासी होने के नाते, क्रिस्तीय होने के नाते हमारे सबसे पहला परम कर्तव्य है प्यारे भाई तथा बहनों, ईश्वर का वचन कहता है यह मेरा स्तुतिगान करेगी। और इसलिए हमारे जीवन में कितना भी काम क्यों ना हो, सबसे पहला सर्वोत्तम स्थान हम अपने ईश्वर की स्तुति करने का कार्य है, क्योंकि ईश्वर ने हमें इसलिए बनाया है और इसलिए हमें इस दुनिया में भेजा है। यह मेरी प्रजा मेरा स्तुतिगान करेगी। और इसलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रभु यीशु मत्ती 6:33 में कहते हैं, अब मेरा बात बोलिए, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सभी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तो यीशु चाहता है हम सर्वोत्तम ईश्वर की स्तुति करें। यीशु चाहता है कि हम इस दुनिया में आने के कारण सबसे पहले ईश्वर के राज्य में महत्व देना है, ईश्वर संबंधी बातों में रुचि दिखाना है, प्रार्थना में, वचन में, मिस्सा बलिदान में हम सर्वोपरि रहना चाहिए, पहला स्थान देना चाहिए। इसलिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 वचन 37 में यीशु हमें बताते हैं, मत्ती 10:37, अब मेरा बात बोलिए,
जो अपने पिता या अपनी माता को जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरा योग्य नहीं है। वह मेरे योग्य नहीं है। जो अपने पुत्र जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है मुझसे अधिक प्यार करता वह है मेरा योग्य नहीं है। वह मेरे योग्य नहीं है। हर माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं। हर माता पिता पति पत्नी एक दूसरों से प्यार करते हैं, मगर यीशु कहता है प्यार जरूर कीजिए। प्यार ही अपने परिवार को बांध कर रखता है। मगर यीशु चाहते हैं कि पति पत्नी आपस में एक दूसरों को प्यार करने से पहले, बच्चे माता पिता और माता पिता बच्चों को प्यार करने से पहले हम सबसे पहले यीशु को हमारे प्यार में पहला स्थान देना है। इस वचन को हमने पिछले हफ्ता भी सुना है और इस प्रकार ईश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन में ईश्वर को पहला स्थान देना है। और यदि हम अस्तित्व में हैं, जीवित है, हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु को धन्यवाद दें। इसी बात को हम आगे बढ़ते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 96:4 में ईश्वर का वचन कहता है, मेरे बात बोलिए, प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। अत्यंत प्रशंसनीय है। वह सभी देवताओं से परम श्रद्धेय है। परम श्रद्धेय है। जी हाँ प्यारे भाई तथा बहनों, जब प्रभु यीशु अपने कार्य इस दुनिया में समाप्त करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, कलीसिया माता कलीसिया यीशु की स्तुति करने लगी। और पुराने व्यवस्थान में हम देखते हैं कैसे इजरायली लोग ईश्वर को धन्यवाद और स्तुति करते हैं मेमने को चढ़ाकर। मगर प्रभु यीशु ख्रिस्त आने के बाद हम पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा ईश्वर के उन सभी महान कार्यों के लिए धन्यवाद देते हुए ईश्वर के अत्यंत प्रशंसनीय है जब हम उनकी स्तुति करते हैं और ईश्वर की महिमा करते हैं। और जब हम स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं, उन सभी विश्वासियों के दिल में ईश्वर राज्य करते हैं। जो विश्वासी प्रभु की स्तुति करता है, धन्यवाद देता है, उनका दिल प्रभु यीशु का निवास स्थान है। और जो कोई व्यक्ति ईश्वर के राज्य के फैलाव में काम करते हैं, ईश्वर उनके दिल में वास करते हैं। और इसलिए हम विश्वासी क्रिस्ती होने के नाते हमारे दिल में निरंतर प्रभु की स्तुति की आवाज़ गूंजते रहना चाहिए। हम निरंतर ईश्वर के राज्य के फैलाव में अपना योगदान देते रहना चाहिए। दूसरा शमूएल अध्याय 22:4 में हम पढ़ते हैं, मेरे बात बोलिए, प्रभु धन्य है, प्रभु धन्य है, मैंने उनकी दुहाई दी और मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ हूँ। जी हाँ, ईश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। जो कोई विश्वासी प्रभु की ओर मन लगाकर दुहाई देता है, ईश्वर उनकी रक्षा करने के लिए उनके पास दौड़ कर आता है। ईश्वर की स्तुति हम देखते हैं, जब दाऊद राजा को ईश्वर ने दुश्मनों से मुक्ति दिलाया तो दाऊद राजा ईश्वर की स्तुति करते हैं। और जब मूसा राजा इजिप्ट लोगों से मुक्ति पाया, फिरौन राजा से मुक्ति पाया, ईश्वर के स्तुति गान करते हैं। और जब माता मरियम को ईश्वर ने चुना माँ बनने के लिए, माता मरियम स्तुति करती है यही कहते हुए, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है क्योंकि उसने मेरे जीवन में महान कार्य किया है। और इस प्रकार जब कभी हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, ईश्वर के महान कार्य जो हमारे जीवन में हुआ है, हम उनको याद करते हैं और ईश्वर की स्तुति करते हैं। और जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, ईश्वर की महानता प्रकट होती है। और जब हम स्तुति करते हैं, हमारे विश्वास मजबूत होती है। और जब हमारा विश्वास मजबूत होता है, ईश्वर भी हिल जाता है और हमें मदद करने के लिए दौड़ कर आता है। जहाँ विश्वास है, ईश्वर वहाँ उपस्थित रहता है।
जहाँ विश्वास है वहाँ ईश्वर कार्य करता है। इसलिए यीशु कहते हैं विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। प्यारे भाई तथा बहनों, विश्वास के सिवा हम कभी ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में विश्वास, हम सभी जन तो कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ। हम सबों का विश्वास का दान मिला है जब हमने बपतिस्मा ग्रहण किया है। मगर जो विश्वास मिला है उस विश्वास को हमें, जैसे पौधों को लगाने से हम खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, सेवा करते हैं, उसी प्रकार हमारे विश्वास को भी विकास होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, गहरा होना चाहिए। यह विश्वास कैसे मजबूत होगी, कैसे गहरा होगी? संत पौलुस हमें रोमी 10:17 में हमें बताते हैं विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मेरा बात बोलिए। रोमी 10:17 में हमें बताते हैं सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है, और जो सुना जाता है वह मसीहा का वचन है। वह मसीहा का वचन है। यहाँ एकमात्र रास्ता है हमारे विश्वास में विकास होने के लिए, वृद्धि होने के लिए, मजबूत होने के लिए। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है मसीहा का वचन। और इसलिए हम जितनी बार हम बाइबल पढ़ेंगे, जितनी बार हम बाइबल का वचन सुनेंगे, हम विश्वास में गहरा होते जाते हैं। और यदि हम बाइबल का वचन सुनते नहीं, बाइबल के वचन पढ़ते नहीं, हमारा विश्वास खोखला है। आप अपने आप में पूछिए, आप प्रतिदिन अपने घरों में, व्यक्तिगत जीवन में कितने समय बिताते हैं ईश्वर का वचन पढ़ने के लिए? शायद हमें से बहुत से ऐसे होंगे जो वचन इतवार के दिन गिरजाघर में सुनाया जाता है उतना ही संतुष्ट हो जाते हैं। जी नहीं, मनुष्य सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता है, मगर ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से। और यदि हमारे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार हमारे आत्मा के लिए और विश्वास में विकास होने के लिए ईश्वर के वचन की जरूरत है। और इसलिए हम उतना ही महत्व देना चाहिए जितने हम भोजन के लिए, शारीरिक के भोजन के लिए महत्व देते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, वैसा हम ईश्वर के वचनों को पढ़ने से ही विश्वास में गहरा होते हैं, मजबूत होते हैं। इसलिए संत जेरोम, जिन्होंने बाइबल का अनुवाद किया, उसने कहा बाइबल के बारे में, इग्नोरेंस ऑफ द बाइबल इज इग्नोरेंस ऑफ जीसस। बाइबल की अज्ञानता यीशु की अज्ञानता है। आप कितने भी पीढ़ी ईसाई क्यों ना हो, आप कितने जन्म से ही आप ईसाई क्यों ना हो, जब तक आप धर्म ग्रंथ का ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, आप यीशु को नहीं जानते हैं। और इसलिए हम ईसाई सिर्फ नाम मात्र के लिए नहीं, मगर वचन के द्वारा, कार्य के द्वारा भी हमें प्रकट करना है। और इसलिए हम सबों को ईश्वर के वचन की ज़रूरत है। जैसे हम प्रतिदिन भोजन लेते हैं, वैसे आत्मिक भोजन, ईश्वर का वचन जो हमारे विश्वास को मजबूत करता है, निरंतर हमें लेते रहना चाहिए। प्रभु के वचनों के लिए हमें महत्व देना चाहिए। तो बात आती है स्तुति करना है। यीशु ने स्तुति किया है और हम सबों को भी ईश्वर ने स्तुति करने के लिए इस दुनिया में लाया है। तो स्तुति हम कैसे करना चाहिए? स्तुति हम कर सकते हैं गीत के द्वारा, ईश्वर के आदर में गीत गाना, ईश्वर के आदर में थाली बजाकर हम स्तुति कर सकते हैं। और कूदते हुए, नाचते हुए भी हम ईश्वर की स्तुति करते हैं। और हम अपने जब हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं। और जब अपने वचन और कार्य द्वारा भी हम ईश्वर की स्तुति करते हैं। और जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, ईश्वर के सामर्थ्य हमारे बीच में आ जाता है। जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में बहने लगता है। और इसलिए बताया जाता है, पहला राजाओं का ग्रंथ अध्याय 8:22 में हम पढ़ते हैं। पहला राजाओं का ग्रंथ अध्याय 8:22 में, इसके बाद सुलेमान इज़राइल के समर्थ समुदाय के सम्मुख ईश्वर के वेद के सामने खड़ा हो गया
और आकाश की ओर हाथ उठाकर बोला, आकाश की ओर, स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर बोला, क्या बोला? हे प्रभु इज़राइल के ईश्वर, ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर तेरे समान कोई ईश्वर है। ईश्वर के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करना ईश्वर की स्तुति करने का मतलब है। और इसी बात को संत पौलुस भी 1 तिमोथी अध्याय 2:8 में हमें बताते हैं। 1 तिमोथी 2:8 में बताते हैं, आप मेरा बात बोलिए। मैं चाहता हूँ कि सभी जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धा पूर्वक हाथ उठाकर प्रार्थना करें। इसलिए हाथ उठाकर प्रार्थना करने में कोई शर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम हाथ उठाकर ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन का, अपने परिवार का ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है। We surrender ourselves, our families into the hands of God. ईश्वर के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करने से यही बताता है, ये ईश्वर, मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, आपके सहारा मैं सब कुछ संपन्न कर सकता हूँ। समर्पण का प्रतीक है। और ईश्वर भी चाहता है कि हम हाथ उठाकर प्रार्थना करें। जब हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और इसलिए हमें कभी हाथ उठाने के लिए, थाली बजाने के लिए, गीत गाने के लिए हमें कभी शर्म नहीं आना चाहिए। और कुछ कारण है कि हम ईश्वर की स्तुति क्यों करना चाहिए। ईश्वर का वचन बताता है, ईश्वर ने हमें बहुत से आध्यात्मिक वरदान दिया है, आध्यात्मिक वरदान दिया है, जिसके लिए हम ईश्वर को स्तुति करना चाहिए। हमारे पास बहुत से पैसा है, दुनिया के हर चीज़ों को हम खरीद सकते हैं अपने पैसे से। और इतना चीज़ें कभी कभी हम खरीद लेते हैं कि हमारे पास रखने के लिए भी जगह नहीं है। दुनिया की चीज़ों को हम अपने पैसों से खरीद सकते हैं, मगर क्या आप आत्मिक वरदानों को अपने पैसे से खरीद सकते हैं? आत्मिक वरदानों को हम कभी खरीद नहीं सकते हैं। ऐसे कुछ वरदान है, देखिए, हम हजारों रुपया खर्च करके दवाई खरीद सकते हैं। क्या आप अच्छे स्वास्थ्य को खरीद सकते हैं? अच्छे स्वास्थ्य ईश्वर का वरदान है। आप अच्छे पलंग खरीद सकते हैं, अच्छे गद्दे खरीद सकते हैं। क्या आप अच्छे नींद खरीद सकते हैं? नहीं। आप अच्छे किताबें खरीद सकते हैं। क्या आप ज्ञान को, बुद्धि को खरीद सकते हैं? वो ईश्वर के वरदान है। और इसी प्रकार हम देखते हैं, आप अपने अच्छा घर बना सकते हैं, मगर क्या आपको शांति का, घर में शांति का वरदान मिल सकता है? अच्छा घर बनाने से, अपने घरों को चीज़ों से भरने से हमें शांति नहीं मिल सकती है। प्यारे भाई तथा बहनों, यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें शांति छोड़कर जाता हूँ। यीशु ही हमें शांति का वरदान दे सकता है। और इसलिए दुनिया की चीज़ों से हमें शांति नहीं मिलती, मगर जब यीशु हमें आध्यात्मिक वरदानों से भरते हैं, तभी हमें शांति मिल सकता है। और इन आत्मिक वरदान जिसको हम चाहते हैं, इन सभी आत्मिक वरदानों को हम खरीद नहीं सकते हैं। ईश्वर के वरदान है, ईश्वर हमें देता है। और इसलिए हमें ईश्वर की निरंतर स्तुति करते रहना चाहिए। और इसलिए हम अपने बच्चों को अच्छे अच्छे किताबें खरीद कर देते हैं, अच्छे अच्छे ट्यूशन मास्टर के पास भेजते हैं। क्या बुद्धि, ज्ञान ट्यूशन मास्टर दे सकता है? नहीं। ईश्वर ही ज्ञान का स्रोता है, जिसको हम इतिहास का ग्रंथ अध्याय 11:1 में पढ़ते हैं। 11:1 में ईश्वर कहता है, अब मेरे बात बोलिए, प्रभु की आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि की आत्मा, सुमति तथा धैर्य की आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा की आत्मा, ये सभी वरदान ईश्वर की देन है। और इसलिए पवित्र आत्मा वरदान जब तक हमें नहीं देता है,
आपके बच्चे कितना भी बड़े ट्यूशन मास्टर के पास क्यों ना जाए, वह ज्ञानी नहीं बन सकता, बुद्धि नहीं बन सकता। वो सिर्फ किताब की बातें पढ़ा सकता है, मगर उन्हें ग्रहण करने के लिए, समझने के लिए यह ईश्वर के वरदान है। और इसलिए बहुत से बारे में लोगों से पूछता, बच्चा कहाँ गया है? क्या आपके बच्चे रात में घर में फैमिली प्रेयर में हाजिर होता है? नहीं फादर, मेरा बच्चा ट्यूशन जाता है। ऐसे कितने परिवार हैं, हम अपने बच्चों को प्रार्थना में शामिल नहीं कर पाते, मिस्सा बलिदान में शामिल कर नहीं पाते, क्योंकि वो 10वीं पढ़ रहा है, 12वीं पढ़ रहा है, इसलिए ट्यूशन जरूरत है। मगर वचन कहता है यदि आप ईश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं तो ईश्वर का वचन कहता है बुद्धि का ज्ञान ईश्वर है, ज्ञान का वरदान ईश्वर के पास है। और जब तक ईश्वर हमें बुद्धि नहीं देता है, ज्ञान नहीं देता है, समझ नहीं देता है, आपके बच्चे कितना भी ट्यूशन क्यों ना करें, आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए ज्ञान का स्रोत बच्चों को यीशु के पास ले आइए। ज्ञान के स्रोत है पवित्र आत्मा, उनके पास ले आ जाइए। और इसलिए जब हम फैमिली के रूप में, परिवार के रूप में प्रार्थना करते हैं शाम के समय, सुबह घर में सभी सदस्यों का हाजिर होना जरूरी है। विशेषकर बच्चों को प्रभु से दूर मत कीजिए। माता पिता ट्यूशन के नाम से, बहाना खेल कूद के नाम से जब हम अपने बच्चों को प्रार्थना से दूर करते हैं, इससे बड़ा पाप दूसरा कुछ नहीं है। क्योंकि वचन कहता है, यीशु कहते हैं बच्चों को मेरे पास आने दो। बच्चों को भी ईश्वर की आशीष की ज़रूरत है, बच्चों को भी प्रभु की कृपा की ज़रूरत है। और इसलिए बच्चों को बाहर बेचकर सिर्फ माता पिता घर में बैठने से पर्याप्त नहीं, बच्चों को यीशु के पास लाइए। यीशु ही ज्ञान का स्रोता है। और इसलिए संत पौलुस हमें बताते हैं रोमी 7:15 में, आप मेरा बात बोलिए, मैं अपना ही आचरण नहीं समझता हूँ, मैं अपना ही आचरण नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं बल्कि वही करता हूँ, बल्कि वही करता हूँ जिससे मैं घृणा करता हूँ। तो हम जो अच्छा कार्य करना चाहते हैं कर नहीं पाते हैं, और जो कार्य बुरा है वही कर डालते हैं, क्योंकि हम प्रभु के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। हर अच्छा कार्य का स्रोत है प्रभु, और इसलिए हमें निरंतर प्रभु के साथ जुड़े रहना है, बने रहना है। जब आप आपके बच्चे प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे और हम तभी अच्छा कार्य कर सकेंगे, हर बुराई को हम जीत पाएंगे। और इसलिए आप अपने बच्चों को प्रभु से दूर मत कीजिए, और स्वयं माता पिता आप प्रभु से दूर मत रहिए। और इसलिए फिलिप्पी 4:13 में संत पौलुस हमें बताते हैं, आप मेरा बात बोलिए, जो मुझे बल प्रदान करते हैं, जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। यदि हमारा बल प्रभु है, यदि हमारे साथ ईश्वर है, और जो कुछ हम करेंगे उसमें सफल होंगे। और इसलिए यीशु यूहन्ना 15 में कहते हैं, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। यदि यीशु हमारे साथ है, यदि हम डाली के समान दाखलता में जुड़े रहते हैं, प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, हम जो कुछ कार्य करेंगे उसमें सफल होंगे। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, जो मुझे बल प्रदान करते हैं उसके सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यदि ईश्वर की आशीष हम पर बनी हुई है, यदि ईश्वर की कृपा से हम संचालित हैं, हम अपने जीवन में जीत पाएंगे। यदि हमारे जीवन में प्रभु से हम दूर है, हमारे घर में प्रार्थना नहीं, हमारे जीवन में वचन नहीं, तो हम कदापि जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 10 साल पहले मैं जैसे था, मेरा परिवार की स्थिति जैसे थे, आज भी मैं वैसे ही हूँ, क्योंकि आप प्रभु की सहारा नहीं चाहते, प्रभु से नहीं मांगते, प्रभु के साथ जुड़े नहीं रहना चाहते हो, प्रभु के वचन में बढ़ना नहीं चाहते हो। और जब इस प्रकार हम प्रभु को अपने जीवन से दूर करते हैं तो हमारा जीवन वैसा ही बने रहेगा। और इसलिए आत्मिक वरदानों के लिए हमें प्रभु के पास आने की ज़रूरत है।
और आत्मिक वरदान संत पौलुस हमें बताते हैं 5:22 में, क्या इन सभी वरदानों को हम पैसा से खरीद सकते हैं? ये है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। ये सब स्वर्ग के वरदान है प्यारे भाई तथा बहन, हम पैसा से खरीद नहीं सकते हैं और इसलिए हमें यीशु के पास आने की जरूरत है। और इन वरदानों के लिए जब हम पाते हैं निरंतर हम ईश्वर को धन्यवाद देते रहते हैं। एफएसी 1:3 में संत पौलुस हमें बताते हैं, आप मेरे बात बोलिए, धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह, धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह, ईसा मसीहा का ईश्वर, ईसा मसीहा का ईश्वर और पिता, उसने मसीहा द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किया है। ये प्रदान सभी किया है। वरदान जो मैंने अभी कहा है, प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, सौम्यता और संयम, इसे पैसा से नहीं कर सकते हैं, मगर प्रभु यीशु ने ईसा मसीहा के क्रूस मरण द्वारा रक्त बहाकर इन सभी वरदानों को यीशु हमें यूं ही मुफ्त में देना चाहता है। मांगने वालों के ये सभी वरदान मुफ्त में है। यदि आप प्यार नहीं कर सकते हैं, आप प्रभु से प्रेम का वरदान मांगिए। यदि आप घर में जीवन में खुश नहीं है, आनंद का वरदान मांगिए। यदि आपके घर में शांति के अभाव है, आस्क जीसस। ये सभी वरदान ईश्वर खुले हाथे भरपूर ऊपर उठता हुआ बाहर बहते हुए छत फाड़ कर ईश्वर हमें इन सभी आत्मिक वरदानों को देने के लिए ही क्रूस पर मरा है। और इसलिए यदि इन सभी वरदानों से हम वंचित हैं, इसका मतलब है कि हम यीशु के पास नहीं आ रहे हैं। यीशु ने क्रूस पर मरकर अपना दिल खोलकर रक्त बहाकर सारी मानव जाति के लिए स्वर्ग के इन सभी आत्मिक वरदानों को हमें देना चाहते हैं। कम टू जीसस, यीशु के पास आइए, आत्मिक वरदानों से भरकर अपने जीवन को आनंदमय बनाइए। इसलिए हम में से कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम दुखी निराश होते हैं, यही बताता है कि हम प्रभु के में जुड़े हुए हैं। प्रभु के लोग, यीशु के शिष्य हमेशा खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और वचन कहता है हमें ईश्वर को स्तुति इसलिए करना चाहिए क्योंकि जन्म से पहले ही ईश्वर ने हम सबों को चुन लिया है, हमें प्रभु की प्रजा बनाया है और ईश्वर ने हम सबों को चुनकर पवित्र बनाया है। बपतिस्मा संस्कार के द्वारा ईश्वर के अपने पवित्र जीवन के लिए स्तुति कीजिए। और ईश्वर ने रक्त बहाकर हम सबों को रक्त की कीमत पर खरीद लिया है। हम ईश्वर के हैं, वी आर अडॉप्टेड चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ईश्वर को धन्यवाद और स्तुति कीजिए। यीशु क्रूस पर मरकर हम सबों को पाप से मुक्ति दिलाया। वी आर रिडीम्ड पीपल, मुक्ति किए हुए लोग हैं। मुक्ति के लिए यीशु को धन्यवाद और स्तुति कीजिए। और प्रभु यीशु रक्त बहाकर हम सबों को पवित्र किया है, उस पवित्रता के लिए प्रभु के लहू के लिए स्तुति कीजिए। और प्रभु यीशु क्रूस पर मरकर हम सबों के लिए पाप क्षमा का वरदान दिया। ये सब आत्मिक वरदान है प्यारे भाई तथा बहनों, जिसके लिए हम निरंतर ईश्वर को धन्यवाद और स्तुति करते रहना चाहिए। इसायास का ग्रंथ अध्याय 6:3 में हम पढ़ते हैं, इसायास के ग्रंथ अध्याय 6:3 में आप सिर्फ सुनिए। राजा उजिया के देहांत के वर्ष मैंने प्रभु के एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। ये इसायास नबी ईश्वर के दर्शन कर रहा है, उस दर्शन का मैं समझा रहा है। सिंहासन पर बैठा हुआ देखा, उसके वस्त्र का पल्ला मंदिर का पूरा फर्श ढक रहा था। उसके ऊपर सराफे विराजमान थे, इन्हें स्वर्गदूत, जिनके लिए 6 पंख थे और 2 चेहरा ढकने के लिए, 2 पैर को और 2 उड़ने के लिए। और वे एक दूसरों को पुकार पुकार कर कह रहे थे, जो हम हर मिस्सा बलिदान में कहते हैं, पवित्र 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 है विश्व मंडल का प्रभु, उसकी महिमा समस्त पृथ्वी पर व्याप्त है।
तो इस प्रकार इसायास नबी स्वर्ग का दृश्य देखता है और वहाँ चारों तरफ स्वर्गदूतगण विराजमान है और ईश्वर बीच में सिंहासन पर बैठा है और ये सभी स्वर्गदूत क्या करते हैं, संतगण क्या करते हैं, पवित्र 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 करके ईश्वर की स्तुति में लगे हुए हैं। और इसलिए जब कभी हम पवित्र मिस्सा बलिदान में आते हैं, जब हम पवित्र पवित्र गीत गाते हैं, हम उस पवित्र मंडली में एक होते हैं। प्यारे भाई तथा बहनों, जब हम स्तुति करते हैं, ईश्वर की दुहाई देते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, हम ईश्वर की उस पवित्र संगति, दूत लोगों की संगति, संत लोगों की संगति में एक हो जाते। कितनी सौभाग्य की बात है, हम इस धरती पर रहने के बावजूद भी पवित्र दूतों की संगति हमें मिलता है। और इसलिए जब कभी एक या दो मेरे नाम पर एकत्र होकर प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, यीशु वहाँ बीच में आ जाते हैं, ईश्वर की उपस्थिति आ जाती है। और इसलिए यह स्तुति की पवित्र मिस्सा बलिदान जिसके द्वारा हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, उस पवित्र मंडल में हम शामिल होते हैं। और इसलिए जब कभी हमें मौका मिला, मिस्सा बलिदान चर्च में क्यों ना हो या ऑनलाइन मिस्सा भी क्यों ना हो, जब हम मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, हम पवित्र मंडल में एक होते हैं। और इसलिए इस अवसर को हम कभी नहीं खोना है। और ऐसाया 66 से 64 वचन 1 में ईश्वर का वचन हमें बताता है। अब मेरे बात बोलिए, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र है पश्चातापी है और जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। तो ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त होती है जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं। और दूसरी बात वचन कहता है, जो विनम्र है, जो नम्र व्यक्ति है, उसके ऊपर प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। और विनम्र व्यक्ति ही पश्चाताप करता है, स्वीकार करता है, जी हाँ मैं पापी हूँ। और इसलिए जो विनम्र है, जो पश्चातापी है। और तीसरा कहता है, जो मेरी वचनों को श्रद्धा से मेरी वाणी सुनता है। क्या हम प्रभु की वाणी, प्रभु के वचन, बाइबल पढ़ने के लिए श्रद्धा के साथ हमें पढ़ना है, श्रद्धा के साथ हमें ईश्वर के वचन सुनना है। और यदि हम श्रद्धा से ईश्वर के वचन सुनते हैं तो ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। और इसलिए जब कभी आप मिस्सा बलिदान में क्यों ना हो या ऑनलाइन क्यों ना हो, कभी भी प्रभु के वचन आपको सुनाया जाता है, हमें श्रद्धा से सुनना चाहिए। यदि श्रद्धा नहीं है तो ईश्वर के अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं आ सकता है। और इसलिए हम जब भी वचन सुनने के बाद आते हैं, हम अपना घड़ी देखना नहीं कब छूटेगा, वो श्रद्धा नहीं है। और यदि आप श्रद्धा से वचन सुनना नहीं चाहते हैं तो मिस्सा में आना ही नहीं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। क्योंकि वही लोगों को ईश्वर की कृपा प्राप्त है जो श्रद्धा से भाग लेते हैं, प्रार्थना में भाग लेते हैं, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं। और वचन कहता है, जो श्रद्धा से मेरे वचन सुनते हैं, उन्हीं के लिए मेरी कृपा प्राप्त है। यदि आप जल्दीबाजी में हैं, ऑफिस जाना है, दूसरा बाजार जाना है, डोंट कम टू द चर्च। क्योंकि जब हम श्रद्धा से भाग लेते हैं, श्रद्धा क्या होती है? श्रद्धा यही होती है, प्यारे भाई तथा बहनों, आकाश पृथ्वी इधर का उधर क्यों ना हो जाए। यदि मैं प्रार्थना करता हूँ तो प्रार्थना ही करता हूँ। और हम कितने बहाना करते हैं, आज ये प्रार्थना हुआ आपके घर में, नहीं फल कोई मेहमान आ गया, हम प्रार्थना छोड़ दिया। कोई मेहमान आया, हम शॉपिंग के लिए चले गए। ये क्या श्रद्धा है? बकवास है। यदि हमारे धार्मिक जीवन में ईश्वर की कृपा के लिए हमें पात्र बनना है, वचन आज हमने सुना है, माँ बाप से बढ़कर, बच्चों से बढ़कर, रिश्तेदारों से बढ़कर तुम्हारा प्यार मेरे ऊपर होना चाहिए, यीशु चाहते हैं। और इसलिए प्रार्थना के समय में या वचन के समय में या मिस्सा बलिदान के समय में कोई बहाना नहीं। मेरा मित्र आया बहुत दिनों के बाद, इसलिए मैं उसके साथ घूमने गया, ये श्रद्धा नहीं है। आप में से बहुत से लोग वेलांगनी भी गए होंगे, आप देखे हैं वहाँ लोग कैसे घुटने में रेती में चल के यहाँ से वहाँ तक, ये श्रद्धा है। पानी क्यों ना बरसे, तूफान क्यों ना आ जाए, वे उठकर भागते नहीं, ये श्रद्धा है।
और इसी प्रकार की श्रद्धा हमारे जीवन में होना चाहिए ईश्वर के प्रति। जब आपके परिवार में फैमिली प्रेयर होता है, सभी जन हाजिर होकर प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मेहमान आया प्रार्थना छोड़ दिया, या ऐसा कोई नहीं कि कोई आया तो बाइबल वचन छोड़ दिया। आज 2 ही वेद बोलेंगे, क्यों? मेहमान आए, जल्दी खाना खाना है। ये श्रद्धा नहीं है, क्योंकि जो कोई व्यक्ति श्रद्धा से प्रार्थना करता है, श्रद्धा से मेरी वचन सुनता है, उसी के लिए मेरी कृपा प्राप्त है। और इसलिए हम प्रार्थना में भाग लेने के बावजूद भी, मिस्सा बलिदान में भाग लेने के बाद भी 10 साल पहले जैसे थे आज भी हम ऐसे हैं, क्योंकि हम ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है। और यदि हम तभी योग्य बनते हैं, हमारे हर कार्य, यदि आप ऑफिस में काम करते हैं, श्रद्धा से काम कीजिए। यदि आप प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, श्रद्धा से भाग लीजिए। यदि आप खाना भी खा रहे हैं, अच्छे से मजे से खाइए। हर कार्य हमें श्रद्धा से करना है। जब ईश्वर हमारे दिलों में श्रद्धा देखता है, उसके अनुसार हमारी प्रार्थनाओं के लिए जवाब मिलती है। नहीं जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, मुझे जाना है, जाइए ना। जल्दी जाने वालों के लिए श्रद्धा नहीं है, ये बकवास है। और इसलिए यदि आप और मैं ईश्वर की कृपा हमारे प्रार्थना में, मिस्सा बलिदान में या वचन सुनने से, पढ़ने से पाना चाहते हैं, श्रद्धा दिखाइए। नहीं तो प्रार्थना में मत बैठिए, जाइए आप, मगर दूसरों को पाप के लिए कारण नहीं बनना। इसलिए वचन कहता है, मैं उन लोगों में, और एक बार बोलिए, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ, कृपा दृष्टि करता हूँ, जो विनम्र है, जो पश्चातापी है, और जो श्रद्धा से मेरी वचन सुनते हैं, जी हाँ, हमारे धार्मिक जीवन में श्रद्धा को वापस लाने की जरूरत है। श्रद्धा से जो कुछ करेंगे, श्रद्धा से करेंगे। विशेषकर हमारे धार्मिक कार्यक्रम, प्रभु हमारे श्रद्धा को देखकर, प्रभु हमारे विश्वास को देखकर हिल जाता है, स्वर्ग से उतरकर हमें मदद करने के लिए आता है। बताया जाता है, ईश्वर सोना चांदी से बनाए हुए सिंहासन पर बैठकर मजा नहीं लेता। ईश्वर विराजमान होता है। ईश्वर के लिए सबसे बड़ा, उत्तम, महत्वपूर्ण सिंहासन है लोगों की स्तुति। जब हम परिवार के रूप में, फैमिली के रूप में, माता पिता, बच्चे, 4 जन 3 जन क्यों ना मिलकर ईश्वर की स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, दिस इज द बेस्ट सिंहासन जहाँ ईश्वर विराजमान होता है। यदि आप परिवार में 3 जन मिलकर प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर आपके बीच में उपस्थित है। इसलिए ईश्वर की उपस्थिति और सामर्थ्य को हम अनुभव करेंगे जब हम श्रद्धा से अपने परिवारों में, अपने घरों में, अपने चर्च में हम प्रार्थना में भाग लेते हैं। और इसलिए इब्रानी 13:15 में हम पढ़ते हैं, इब्रूज 13:15। ध्यान से सुनिए, अब मेरे बात बोलिए। हम ईसा के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होठों का फल निरंतर चढ़ाते रहते हैं। हमारे होठों से ईश्वर की स्तुति की बलिदान निरंतर यीशु के नाम से हम चढ़ाते रहते हैं। जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, जब हाथ उठाकर हालेलुया बोलते हैं, ईश्वर के अपने होठों का फल, हमारे होठों को सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं, गाली देने के लिए नहीं, हमारे होठों को ईश्वर के स्तुति में इस्तेमाल कीजिए। प्यारे भाई तथा बहनों, हमारे मुख से निकलने वाले हर एक शब्द पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और दूसरों के दिल में प्रभाव डालता है, क्योंकि हम इस होठों से दूसरों को अभिशाप नहीं, दूसरों को गालियां नहीं, पर अपने होठों से ईश्वर की स्तुति करते हैं। इसलिए वचन कहता है, ईश्वर अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होठों का फल निरंतर चढ़ता रहते हैं। ईश्वर चाहता है कि हम अपने शरीर के हर एक अंगों द्वारा हाथ उठाकर, होठों को खोलकर प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है, यीशु का नाम लेना है। रास्ते में जाते जाते सिनेमा का गाना सुनना नहीं,
मगर होंठों का स्तुति का बलिदान होंठ यीशु 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 नाम लेते रहिए। हालेलुया हालेलुया, रास्ते में जाते समय हालेलुया बोलते जाइए। यीशु के नाम की स्तुति करना है। जब हम इस प्रकार ये अपने होंठों द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान चढ़ाते हैं, ईश्वर निरंतर जहाँ स्तुति होती है वहाँ यीशु की उपस्थिति होती है। ईश्वर के सिंहासन, आज हमने सुना है, सिंहासन के चारों तरफ स्वर्गदूत है, ईश्वर की स्तुति करते हैं और ईश्वर वहाँ उपस्थित है। यदि आपके घर में ईश्वर की उपस्थिति होना है, ईश्वर की आशीष जाना है, ऐसे फैमिली माता पिता बच्चे मिलकर हालेलुया 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 ईश्वर की स्तुति कीजिए। थैंक यू बोलिए, माता पिता थैंक यू बोलिए, हमारे बच्चों के लिए थैंक यू जीसस, मेरे घर के लिए थैंक यू जीसस, हम सबों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कितनी कितनी स्तुति कर सकते हैं। यदि हम नाम लेने जाएंगे तो दिन भर हम यीशु की स्तुति कर सकते हैं। सिर्फ हमारे दिल में ईश्वर की स्तुति करने के लिए इच्छा होना चाहिए। और जब इस प्रकार निरंतर हमारे होंठों से ईश्वर के प्रति स्तुति का बलिदान निकलते रहते हैं, चढ़ाते रहते हैं, तो ईश्वर हमारे बीच में हमारे जीवन में आ जाता है और हमारे जीवन को महिमान्वित करता है। स्तुति की ताकत बहुत बड़ा है प्यारे भाई तो बहन, बहुत बड़ा ताकत है। एक छोटी सी घटना बाइबल में हम देखते हैं, दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 20 वचन 15 में, दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 20 वचन 15 में 3 सैनिक लोग यानी अलग अलग 3 राजा, उनके अलग अलग सैनिक जुदा यानी यहूदी इजरायली लोगों के ऊपर मार करने के लिए आ रहे हैं। जब इजरायली लोगों ने देखा 3 सैनिक आ रहे हैं, वे घबरा गए, हाथ उठाकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, यीशु हाँ ईश्वर हमें बचाइए, हम ये 3 सेना से हम कभी लड़ नहीं सकते, जीत नहीं पाएंगे। और जब उन्होंने ईश्वर की सहारा मांगा, ईश्वर ने क्या बोला, यह लड़ाई मेरी है तुम्हारी नहीं, तुम डरो मत। और इजरायली लोगों का कैप्टन ने क्या किया है, बहुत से लोग इजराइल लोगों को ईश्वर के मंदिर में भेजा, ईश्वर के नाम से जाकर स्तुति करो। यदि हम आज की तारीख में ऐसे सुनेंगे, बेवकूफ लोग युद्ध मारने के लिए आ रहे हैं, लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं, तो लड़ाई करने के बदले में ये इजराइल लोग गए ईश्वर की स्तुति करने लगे। जब तक उनकी स्तुति चलते रहा, जब इजराइल लोगों को मारने के लिए दुश्मन 3 सैनिक लोग आए, 3 गुट, और इजराइल लोग लड़ नहीं सकते हैं, इसलिए प्रार्थना किया और कैप्टन ने इजराइल लोगों को भेजा, जाओ ईश्वर की स्तुति करो। और जब ईश्वर की स्तुति करने लगे, ये तीनों गुट लोग के आपस में लड़े, सब मारे गए, एक भी नहीं बचा। तो इस प्रकार ईश्वर अपने दुश्मनों के में उलझन पैदा कर सकता है। और ईश्वर की स्तुति में इतनी ताकत है, इसलिए आपके परिवार में, फैमिली में झगड़ा है, मारपीट है और मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम एक दूसरों के पूरा इतिहास बोल दे, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, इससे हमारे लिए कोई निवारण नहीं। इतनी समस्या बड़ी हो जाती है, हम कचहरी तक चले जाते हैं, मगर हम कोई यीशु के पास नहीं आते हैं। इसलिए हमारे दुख में, हमारी समस्याओं में, हमारे परेशानी में हमें दुखी निराश होने की जरूरत नहीं प्यारे भाई तथा बहनों, हमें प्रभु के पास आने की जरूरत है। हाथ उठाकर अपने सभी समस्याओं को यीशु को चढ़ाते हुए स्तुति कीजिए, धन्यवाद दीजिए, देखिए ईश्वर की महिमा आपके जीवन में कैसे अनुभव करेंगे। और इसलिए प्यारे भाई तथा बहनों, आज के वचनों द्वारा ईश्वर हमें ये बताना चाहते हैं कि स्तुति में ताकत है। ईश्वर जब हमारे स्तुति को सुनता है, हमारे बीच में उतर आता है और ईश्वर हमारे जीवन की स्तुति को सुनकर जीवन की हर समस्या को सुलझा सकता है। और इसलिए स्तुति करने में विनम्र बनकर प्रभु के वचन सुनने के लिए कभी पीछे नहीं हटती है। पश्चातापी बनिए, विनम्र बनिए और श्रद्धा से ईश्वर के वचन सुनिए, श्रद्धा से प्रार्थना कीजिए। हर कार्य जब हम श्रद्धा से करते हैं, ईश्वर की कृपा उन सबों पर बनी रहती है। आज के पवित्र बलिदान में हम प्रभु से यही प्रार्थना करें, जैसे यीशु ने कहा, ये स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता पिता, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सभी रहस्यों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। मेरे बच्चे नम्र होते हैं, मेरे बच्चों में पश्चाताप की कृपा है और मेरे बच्चे हम जो बोलते हैं वो
सुनने के लिए तैयार है, ऐसी जीवन हम जिएंगे। हम बड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ईश्वर के सामने बच्चे हैं। आइए हम हाथ जोड़कर दयालु परमेश्वर के सामने कहते हैं, प्रभु मुझे स्तुति का वरदान दीजिए, प्रभु मुझे विनम्र बनाइए, पश्चातापी बनाइए, आपके वचनों को श्रद्धा से पढ़ने के लिए, सुनने के लिए कृपा दीजिए, जैसे मैं हमेशा मेरे होंठों का फल स्तुति का बलिदान ऐसे फैमिली परिवार के रूप में निरंतर हम आपको चढ़ाते रहें। इस प्रकार हमारे स्तुति के बलिदान में आप मेरे परिवार में उपस्थित रहेंगे और मेरा जीवन आनंद से, प्रेम से, सहनशीलता से, हर प्रकार के स्वर्गीय के वरदानों से भरे रहेंगे। यही आशा के साथ हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में आइए हम भाग लेते हैं। आइए हम सब हाथ जोड़कर खड़े होकर अपने विश्वास को दोहराते हैं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और दृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह मनुष्य के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक ही पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाई तथा बहनों, यीशु अपना काफी समय पिता ईश्वर से प्रार्थना करने में बिताते थे। प्रार्थना हमें ईश्वर से संयुक्त करती है और उसकी इच्छा को जानने और समझने में मदद करती है। हम पिता ईश्वर से अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संगी कैथोलिक कलीसिया को अनुशासन और सही दिशा की ओर ले सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग जनता के अधिकारी हैं और उच्च पदों पर नियुक्त हैं, वे अपनी शक्ति और पद का उपयोग धन कमाने और व्यक्तिगत लाभ के लिए न करें, परंतु समाज के आम लोगों की भलाई के लिए करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे विश्वासियों के बोझ को हल्का करने में मदद करें और उनकी परेशानियों और कठिनाइयों में उनका साथ दे सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हर ख्रिस्तीय विश्वासी मसीह के विनम्र भाव का अनुकरण करने में अपना जीवन व्यतीत करें, क्योंकि यीशु ने ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद अपने को दीन तथा विनम्र बनाया और क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन लोगों के लिए प्रार्थना
न करे जो गरीब तथा लाचार है और उन पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं। लोग उनकी पुकार को सुने और उनको न्याय मिल सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए सर झुकाकर प्रभु से प्रार्थना करें। हे दया में स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से हमारे एक व्यक्ति जो आपके सामने हाजिर हुए हैं, हमारे होंठों का बल स्तुति का बलिदान ग्रहण कीजिए। हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं आपके सभी आशीषों के लिए, विशेषकर आज के पवित्र वचनों के लिए। और हम प्रार्थना करते हैं हमारे एक व्यक्तियों के दिल में ऐसी श्रद्धा उत्पन्न कीजिए ताकि हम आपके वचनों को श्रद्धापूर्वक सुन सकें। हमारे एक व्यक्तियों में आत्मिक वरदानों के लिए भूख प्यास उत्पन्न कीजिए ताकि हम स्वर्गिक वरदानों के लिए हमेशा भूखे प्यासे रहें और अपने जीवन में पाई हुई है हर वरदानों के लिए, दुनियादारी के क्यों ना हो, आत्मिक वरदान क्यों ना हो, इन सभी वरदानों के लिए निरंतर हमारे होठों से स्तुति और धन्यवाद का बलिदान निरंतर आपको चढ़ता रहे। यह वरदान हम मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। मेरे जीवन के बदले तुझे मैं क्या दूँ, तुझे मैं क्या दूँ यीशु, तू ही बता। सारी दुनिया को पालूं पर आत्मा खो दूँ, पर आत्मा खो दूँ, मुझको मिलेगा ही क्या। मेरे जीवन के बदले तुझे मैं क्या दूँ, तुझे मैं क्या दूँ यीशु, तू ही बता। सारी दुनिया को पालूं पर आत्मा खो दूँ, पर आत्मा खो दूँ, मुझको मिलेगा ही क्या। मेरे जीवन के बदले तुझे मैं क्या दूँ, तुझे मैं क्या दूँ यीशु, तू ही बता। सारी दुनिया तो दबे न प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान को ग्रहण करें। हे प्रभु, जो बेटे हम तुझे समर्पित कर रहे हैं, यह हमें पवित्र बनाए और दिन प्रतिदिन दिव्य जीवन बिताने को प्रेरित करें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें।
तूने विश्व के सभी तत्वों का सृजन किया और परिवर्तन की व्यवस्था की। तूने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और सृष्टि के सभी रहस्य उसके अधीन कर दिए कि तेरा प्रतिनिधि बनकर वह सारी सृष्टि पर शासन करे तथा तेरे महान कार्य देखकर प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा दिन रात तेरा प्रशंसा गान करते रहे। आकाश और पृथ्वी, दूत और महादूत इन्हीं की प्रशंसा करते हुए हम एक साथ गाते हैं। हे परमपिता, तो वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरे समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करें, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तो सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सभी युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दशों दिशा में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी जिस प्रजा को निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर
किया तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का समारोह मना रहे हैं। छोटे बड़े आप जहाँ कहीं भी हो, हाथ जोड़कर घुटने टेककर प्रभु यीशु को हमारे बीच में स्वागत करेंगे। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब कभी हम तेरी रोटी खाते हैं और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परमपिता, हम तेरे पुत्र के मुक्ति प्रदुत और प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अब क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा को नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरी धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, सेंट फ्रांसिस डी सेल्स, सेंट मार्टिन, सेंट एंथनी तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सगभागी बनाए। हमें इनके निरंतर प्रार्थनाओं का चल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष लाया, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी वो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से तार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सभी एक साथ तेरे महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है।
आइए हम सभी जन अपने हाथ उठाकर स्वर्गीय पिता से वही प्रार्थना बोलें जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे हम सब जो प्रभु की भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग में हूँ कि आप मेरे घर में आवे, कि तू एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
रहे हैं, जो यहाँ उपस्थित है, अपने हाथ जोड़िए, अपने आंखें बंद कीजिए, अपने दिल में आई हुई यीशु से हम प्रार्थना करें। हे दया सागर पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपको धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे जीवन का दान दिया है, मुझे और मेरे परिवारजनों को जीवितों के बीच में रखा है और इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेकर आपकी वचन सुनने के लिए, आपकी एक कृपा पात्र बनने के लिए मुझे वरदान दिया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ। हे दया सागर प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे परिवार के सभी जनों के लिए, माता पिता, बच्चों के लिए, हर परिवार में हमें प्रार्थना के वरदान दीजिए, श्रद्धा से वचन पढ़ने के सुनने की कृपा दीजिए और एज ए फैमिली मिलकर आपकी स्तुति करने के लिए हमें कृपा दें, क्योंकि धन्यवाद भरा हृदय से जब हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है। ये करुणा से ग्रेशो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग इस पवित्र मिस्सा बलिदान में और प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उन सबों पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, और जितने भी लोग मिस्सा में भाग नहीं ले रहे हैं, उन पर भी आपकी आशीष हो, कृपा हो। करुणा से रेशो आपके शक्तिशाली नाम से हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे पल्ली में हर परिवार को प्रार्थना का वरदान दीजिए, वचन सुनने के पढ़ने के वरदान दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के सभी भाई बहनों के लिए, विशेषकर जो कोरोना वायरस से पीड़ित है, उन सभी डॉक्टर नर्स लोगों के लिए जो सेवा करते हैं, उन सबों के साथ रहिए प्रभु, और उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर, सुरक्षा प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के और दुनिया के सभी नेता लोगों के लिए, जो हम पर शासन करते हैं, जिनको तूने हम पर नियुक्त किया है, उन सबों पर आपकी विशेष आशीष और कृपा हो, ताकि जो भी कार्य वे करते हैं, निर्णय जो लेते हैं, हम हर एक व्यक्तियों के लाभ के लिए, देश की उन्नति एकता के लिए हो। और आज विशेष रूप से हम सभी बच्चों के लिए, युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। करुणा से ग्रेशो बच्चों को, युवक युवतियों को प्यार करने वाला परमेश्वर, उन सबों पर आपकी अनुग्रह बनी रहे। हम सभी बच्चों पर, युवक युवतियों पर को हर प्रकार के बुरे लोगों से, दुर्घटनाओं से, बुरी आदतों से, बुरी संगति से बचा कर रखिए। निरंतर आपकी पवित्र संगति में होकर, एक होकर सदा तेरी स्तुति करने के लिए, महिमा करने के लिए, निरंतर आपके साथ सहभागी बनकर आपके साथ जीवन जीने के लिए कृपा दे। करुणा से रेश इस कोरोना वायरस के समय हम सभी जन अपने घरों में हैं, हम सबों को आप आशीषित कीजिए, कोरोना वायरस को समाप्त कर दीजिए, जैसे हम फिर से एक बार अपने कार्य जीवन पहले के समान जी सके और आपकी प्यार में, सेवा में आगे बढ़ सके। हम सभी अपने हाथ उठाकर ईश्वर की स्तुति करते हैं सभी आशीषों के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता की स्तुति हो पिता को धन्यवाद, पिता की स्तुति हो पिता को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र तृत्व की स्तुति हो पवित्र तृत्व को धन्यवाद, पवित्र तत्व की स्तुति हो पवित्र तत्व को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ यीशु। अंतिम प्रार्थना आशीष के पहले एक अनिवार्य सूचना है। कुछ हफ्ता पहले, 2 या 3 हफ्ता पहले अपने गिरजाघर में जो अनाज बांटी गई है, वह अपने चर्च के तरफ से नहीं, पल्ली के काउंसिल मेंबर्स, एरिया कलेक्टर्स लोगों के तरफ से नहीं, ये अनाज बांटी गई NMSS नागपुर मल्टीपर्पज सोशल सर्विस सोसाइटी के द्वारा बांटा गया, और उन्हीं लोगों ने नाम चुना है किसको देना है किसको नहीं देना है। और इसलिए हम में से बहुत से लोगों में यह भ्रम है कि हमने बांटा है, हमने ऐसी आवश्यक लोगों का नाम छोड़ दिया है। हम किसी का नाम नहीं छोड़ा है। इस अनाज बांटने में हमारा कोई हाथ नहीं है। जो कुछ हुआ नागपुर मल्टीपर्पज सोशल सर्विस सोसाइटी के द्वारा हुआ है,
और इसलिए आपके एरिया कलेक्टर्स लोगों को या काउंसिल मेंबर लोगों को आप दोष मत दीजिए यह कहते हुए आपने हमारा नाम क्यों नहीं दिया है। और इसलिए हम सबों से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ऐसी गलत धारणाओं को आप अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए। यदि अपने चर्च से होता है ज़रूर अपनी एरिया कलेक्टर्स और काउंसिल मेंबर लोगों के द्वारा ही होगा, ये बाहर वालों से हुआ, इसलिए इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। और दूसरी सूचना है, हर मंगलवार को 12 बजे से संत एंथनी के आदर में उपवास प्रार्थना होती है। ऑनलाइन आप अपने घर से ही सुन सकते हैं। इसके अलावा हर शुक्रवार को यूकरिस्ती आराधना अपने गिरजाघर में होती है। शाम को 5 बजे से आप भी अपने अपने घरों में रहकर यूकरिस्ती आराधना में भी भाग ले सकते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें यूकरिस्त का सर्वोत्तम दान दिया है और मुक्ति के अन्य दान भी प्राप्त करें और तेरा महिमा गान निरंतर करते रहें। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीष प्रदान करे। आप सब विदा लें, प्रभु की सेवा में लगे रहें। ईश्वर को धन्यवाद। सभी मिशनरियों के लिए प्रार्थना। ईश्वर के पिता, जब आपके इकलौते पुत्र मृतकों में से जी उठे तब उन्होंने अपने शिष्यों को नियुक्त किया और कहा कि जाओ और सभी राष्ट्रों में अपने शिष्य बना लो। बपतिस्मा संस्कार द्वारा आप हमें याद दिलाते हैं कि हम भी सभी कलीसिया के मिशन कार्य के भागीदार हैं। पवित्र आत्मा के वरदानों द्वारा हमें सशक्त बना दे कि हम साहस और उत्साह के साथ सुसमाचार के साक्षी बने, ताकि जो मिशन कार्य कलीसिया को सौंपा गया है, जो मिशन कार्य अभी भी अपूर्ण है, उस मिशन में हम हमारी प्रभावशाली अभिव्यक्ति द्वारा दूसरों के लिए ज्योति और जीवन ला सके। हमारी सहायता कर कि हमारे साक्ष्य द्वारा सब लोग यीशु के अनंत प्रेम और करुणा का अनुभव पा सके, वो जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सच्चा